A very good afternoon, everyone. I hope you all are doing good. Am I audible to everyone or am I visible to everyone? So kindly drop me a message. Before starting the session, I would like to thank you, Rohit Gupta sir, for giving me this opportunity. And I would like to thank you, Dr. Neelam ma'am. And now I'm audible to everyone? All right. So I would like to thank you, Dr. Neelam ma'am, and Tarun Gupta sir, and Sarvesh Sharma sir for your support. So before starting this session, सो क्या आपको पता है कि इंडिया में 50% जो पेशेंट्स हैं वो अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं लेते हैं, और जो 60% पेशेंट्स हैं उन्हें ये नहीं समझ आता कि उन्हें अपनी दवाइयाँ कैसे लेनी है. They are unable to understand how to take their medication. So as you all know, pharmacy practice is still in a initial stage of development in India, but launching a PharmD, which is Doctor of Pharmacy, has brought a serious discussion about the clinical pharmacy in the country. So this profession is in a building stage, so the pharmacists, the doctors, and the nurses, other healthcare professionals are, and the pharmaceutical industries as well as recruiters, they have a numerous question about this profession and about this course. So the role of pharmacist before this are mainly considered as a ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था, वो मास्टर ऑफ फार्मेसी में क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस में ही पढ़ाया जाता था. सो मैनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट वाई टू स्टडी PharmD, because PharmD is a globally accepted discipline program which makes individual to be an active member of a healthcare profession, and by providing the patient care and knowledge, he will create a good bond between the patient and the medical fraternity. So many of people are easily getting confused between the DPharm and the PharmD. So DPharm is Diploma of Pharmacy and PharmD is the Doctor of Pharmacy, which is post-integrated course which involves 6 years and 5 years of academics as well as 1 year of internship and residency. जो डिप्लोमा है वो 2 साल का है, और जो PharmD का कोर्स है वो 6 साल का होता है, जिसमें 5 ईयर्स आप एकेडमिक्स में स्पेंड करते हो और 1 साल आप जो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस के लिए जो आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होनी ज़रूरी हैं वो आप इंटर्नशिप में सीखते हो. और as this course has been launched in India in 2008, whether if we are comparing this thing with the Western countries, so this course is well established and implemented in a very good manner in 1950. So हम कहीं ना कहीं 50 से 60 साल we are lacking here. And PharmD is a basic educational requirement for the Western country if you are going to choose the PharmD, and if you want to be a pharmacist out there. So PharmD जो एक basic educational degree है, so जो PharmD some of person are saying that हिंदी में, तो जो आफ्टर PharmD जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो तो वो आपको आफ्टर PharmD आप वहाँ पे MD इन मेडिसिन भी कर सकते हो, आप एम्बुलेटरी केयर कर सकते हो, एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स भी आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो. तो ज़्यादातर वो कोर्सेज आपको वहाँ पे बताते हैं. सो
what to do with pharmacists if they are working in hospital. So he can be your drug consultant and clinical pharmacist. So our today's objective of this live is role of clinical pharmacist as well as the clinical pharmacy service. And clinical pharmacist is the one who is individually registered and who provide the patient care and who optimize the use of medication and promote health and wellness and disease prevention, who cares for his patient for all the healthcare setting, and he has to collaborate with the other healthcare professional as well. And next thing is drug information pharmacist. तो ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट कौन होगा? एज बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट और अ ड्रग एक्सपर्ट ही कैन रन अ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, और वहाँ पर वो क्या नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा अबाउट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड रिएक्शंस and how to store the medication, and he will also provide you knowledge regarding in the emergency case of by providing the knowledge about the antidotes in case of poisoning. And so move on to the further topic, what is the main role of a clinical pharmacist. So सबसे बड़ी बात कि जो ड्रग इंट्रैक्शंस आज के टाइम में, एज यू ऑल नो, कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री विद द न्यूमरस ऑफ हॉस्पिटल, सो डॉक्टर एंड फिजिशियन दे आर नॉट गिविंग देयर फुल ऑफ एनर्जी to the research, as well as they cannot spend their much of time so they can solve their patient doubts regarding the disease and lifestyle modification and drugs. डॉक्टर्स जो हैं उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, हार्डली दे आर स्पेंडिंग 2 to 3 minutes फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट. तो वो उन्हें कई बार क्या होता है कि पेशेंट नहीं समझ पाता कि उसे अपनी मेडिकेशन कैसे लेनी है, और उसे ड्रग्स के बारे में भी अच्छे से नहीं पता चल पाता, इवन ऑल्सो अबाउट द डिजीज़ भी. एंड तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा वहाँ पे कि ड्रग इन्फॉर्मेशन टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. जो फिजिशियन है दे आर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग एज वेल, कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो आपको ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बताते हैं, जो कि उनकी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकता है. एंड क्योंकि व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज हेयर, सो जो स्किल्स हैं ड्रग इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, कोई भी न्यू ड्रग अगर आ रही है मार्केट में, एंड व्हाट इज़ द ब्रांड प्राइस and the skill of resolving the about the drug interactions queries तो वो आपको डॉक्टर को आप बता सकते हो. सेकंड थिंग कि जो प्रिवेंशन, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन. तो इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर कोई एक बार दवाई लेके चला गया तो उसमें हम क्रॉस चेक कभी नहीं करते हैं. क्रॉस चेक से क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. एंड एक स्टडी हुई थी नेफ्रोलॉजी वार्ड में, जिसमें पाया गया कि 1/5 पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैड अ सीरियस ड्रग इंट्रैक्शंस. सो जो उसका मेजर इंसिडेंस है वो 70.9% है. इतने लोगों को ड्रग इंट्रैक्शन मेजर पाई गई सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में. नेक्स्ट इज कि मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. तो ये काम तो फिजिशियन ही इंडिया में करते हैं, वही दे आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, सो व्हाट डॉक्टर विल डू, ही विल डायग्नोज अ पेशेंट एंड आफ्टर दैट ही विल डू सर्जरी इफ रिक्वायर्ड. सो आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट, तो वहाँ पे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा अबाउट द मेडिकेशन एंड अबाउट द पेशेंट काउंसलिंग एज वेल. एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वहाँ पे मेजर रोल ये होता है. और इंडिया में डॉक्टर दैट्स वाई नॉट स्पेंडिंग दैट मच टाइम, क्योंकि
वो हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगाते हैं आपको डायग्नोज करने में, उनको हिस्ट्री भी लेनी होती है, उनको सर्जरी भी करनी होती है। तो वो कहीं ना कहीं स्किपिंग द दिस पार्ट की वो पेशेंट काउंसलिंग नहीं करते हैं अबाउट द ड्रग्स, अबाउट द डिजीज, अबाउट द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एज वेल। सो अगर इफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज देयर, सो he can guide you about your disease and he can spend that much of time, so you can easily know about your disease and drugs and the lifestyle modification as well. Next you have to do is therapeutic drug monitoring. सो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। सो उन्हें पता होता है कि एफिकेसी को कैसे इंक्रीज करना है और टॉक्सिसिटी को कैसे रिड्यूस करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज लियाजन विद द कम्युनिटी। सो इन इंडिया हम देखते हैं कि फिजिशियन और नर्सेज और अदर हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, तो सिर्फ वही जो कम्युनिटी में उनका ज़्यादा अट्रैक्शन है, वेदर द कम्युनिटी फार्मेसी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी सिलेबस। सो अगर हम वहाँ पे उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे ही हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर स्टिल अनकवर्ड इन इंडिया, तो अगर अच्छे से वो अपनी नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज़, हाउ टू प्रिवेंट देम, तो उन्हें वो अच्छे से अपडेटेड रहेगी। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी। अब इंडिया में क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन और जो कॉस्ट होती है, किसी भी अगर आप जाते हो किसी फिजिशियन के पास तो आपको वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो उनके हाथ में होता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपी कितने अमाउंट में वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप क्रॉस चेक करोगे और आपको पता चलेगा कि उस पेशेंट को हमने इफ़ेक्टिव थेरेपी प्रोवाइड करी है या नहीं करी है। एंड जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यहाँ पे क्या रोल है, उन्हें हर एक ब्रांडेड ड्रग का प्राइस पता होता है और जो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी है वो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, तो उन्हें वो अच्छे से पता होती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये तो सेम ही चीज़ हो गई, ये काम तो वो भी करते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि दे आर डूइंग अ फार्मेसी डिग्री बट दे आर प्रैक्टिस दिस थिंग इन अ डिफरेंट मैनर। लाइक कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फिजिशियन के साथ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन करते हैं और वो थोरोली जो ट्रीटमेंट चार्ट है उसको मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे कोई ड्रग इंट्रैक्शन है या फिर कोई ड्रग फूड इंट्रैक्शन है या फिर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स हैं, तो वो सब वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं और कोई भी उन्हें ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, वेदर वी आर टेकिंग द सेशंस विद द फिजिशियन एंड द नर्सेज एज वेल। नेक्स्ट इज़ कि वो डोज एडजस्टमेंट करते हैं। जो डोज एडजस्टमेंट करते हैं उससे क्या होगा कि समटाइम्स पेशेंट को क्या होता है कि अननेसेसरी डोज जो है वो फिजिशियन प्रोवाइड कर देता है। तो विद द डोज एडजस्टमेंट वहाँ पे थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मेजर रोल है ताकि आप एफिकेसी को बढ़ा सको, टॉक्सिसिटी को कम कर सको। सो नेक्स्ट इज़ कि आप पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो। अब आप सोचोगे कि पेशेंट काउंसलिंग से क्या होगा। सो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव डन द थीसिस वर्क इन दिस। सो अगर आप किसी पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल इफ़ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सोर थ्रोट एंड फीवर, तो वो फिजिशियन के पास जाता है और उसे वो पैरासीटामोल एनी एंटीपायरेटिक ड्रग वो प्रिस्क्राइब कर देता है विद एंटीबायोटिक। तो पेशेंट क्या करता है, आफ्टर 1 to 2 डे जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, आफ्टर दैट ही स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन। वो सोचता है वो ठीक हो गया, बट अगर आप उसे पेशेंट काउंसलिंग दोगे कि यू हैव टू टेक द ऑल ऑफ द डोजेज प्रॉपरली, तो माइट बी कि वो अपना डोज स्किप ना करे और उससे क्या होगा, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी और जो मेडिकेशन अडहेरेंस का बिहेवियर है वो इम्प्रूव होगा एंड उसकी प्रोलॉन्ग लाइफ भी अच्छी होगी। एंड नेक्स्ट इज़ कि पेशेंट काउंसलिंग का बहुत ही मेजर रोल है। अगर आप किसी भी पेशेंट को अच्छे से प्रोवाइड करवाते हो तो उसकी नॉलेज भी
अच्छे से गेन होती है अबाउट द ड्रग्स, अबाउट द डिजीज़, अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेजर रोल ये होता है कि आपको सबसे पहले श्योर करना है रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट थिंग इज़ आपको वहाँ पे काउंसिल करना है कि जो ड्रग है वो राइट पेशेंट को जा रही है विद द राइट अमाउंट, विद द राइट डोज ऑफ द ड्रग एंड द राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी विद द राइट रूट, और आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। नेक्स्ट इज़ कि आपको वहाँ पे देखना है कि कोई ड्रग इंट्रैक्शन है। इफ़ देयर इज़ ड्रग इंट्रैक्शन देयर, तो आपको वो सॉल्व करनी है बाय अल्टरिंग द डोज, और कोई भी डोज का जो चेंज कर सकते हो आप टाइम वहाँ पे। और अगर वहाँ पे आपको क्लोजली मॉनिटर करना है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। अगर आप फाइंड आउट करते हो कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो आपको वो पीवीपीआई में जाके रिपोर्ट करनी है। वहाँ पे आपको जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है वहाँ पे ड्रग काइनेटिक्स और ड्रग का एक्शन आपको उनको बताना है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि इफ़ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ मल्टीपल डिसऑर्डर्स, तो देर मस्ट बी अ चांसेस कि वहाँ पे पॉलीफार्मेसी हो, मल्टीपल जो ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो देर माइट बी अ चांस कि पेशेंट वो ड्रग्स स्किप करें। तो आपको ये है कि आपको पॉलीफार्मेसी में आपको एक रैशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। उससे क्या होगा कि एक तो पॉलीफार्मेसी कम होगी, और उसको पता चलेगा कि अगर उसने कोई भी डोज या ड्रग स्किप करी, तो देर माइट बी अ चांस कि ही इज़ गेटिंग ड्रग इंटरेक्शन देयर एंड ड्रग फूड रिएक्शन ऑल्सो देयर एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन एज वेल। आपको वहाँ पे एक और चीज़ करनी है। एज बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आपका प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए कि यू हैव टू रिड्यूस द इकोनॉमिकल बर्डन ऑन द पेशेंट। जैसे कि आज के टाइम में इतनी मेडिकेशन आती हैं तो उनके प्राइसेस वेरी हाई होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आपको ये चीज़ एश्योर करनी है कि आपको वहाँ पे इकोनॉमिकल बर्डन भी रिड्यूस करना है पेशेंट का। और नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपको पेशेंट काउंसलिंग करनी है अच्छे से पेशेंट की, ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि वो किस चीज़ से उसे ये प्रॉब्लम हो रही है, और अबाउट द ड्रग्स, अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो देयर माइट बी अ चांस कि उसका जो मेडिकेशन अडेरेंस बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इम्प्रूव हो जाए, और प्रोलॉन्ग लाइफ उसकी अच्छी हो जाए। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ important and I can say major support system for the Indian healthcare system, and the physician and many, I must say कि physician are missing in India. Advice of a clinical pharmacist for the better treatment plan for the patients. अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, तो ये होगा कि उससे पेशेंट का भी प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द डिजीज़, क्योंकि एज बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपको ये एश्योर करना है, आपका प्राइमरी कंसर्न ये है कि आपको पेशेंट को टीच करना है अबाउट द मेडिकेशन, अबाउट द डिजीज़, अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड जो समहाउ इन इंडिया ये नहीं अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, बट दैट्स वाई आपको इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम समहाउ लैक कर रहा है यहाँ पे। और ये दिस टाइम हैज़ बीन कम फॉर इंडिया टू इम्प्लीमेंट द मैक्सिमम क्लिनिकल फार्मासीज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपल, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। तो if anyone wants to ask me any question regarding this topic, so he or she can freely ask me a question. और वन मोर थिंग, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपसे डिस्कस करनी है कि मैनी ऑफ पर्सन जो हैं वो क्या करते हैं कि अपना लाइसेंस वो रेंट पे दे देते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज हाउ यू कैन प्ले विद एनी वंस लाइफ इफ़ दे आर नॉट knowing anything about the medication,
तो वो अगर सोसाइटी में आएंगे, उन्हें नहीं पता कि मेडिकेशन को कैसे स्टोर करना है, क्या उनके इंटरेक्शंस हैं, क्या उसका पेशेंट की सेफ्टी का उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। एंड तो अगर आप उन्हें आपको अपना पेशेंट का कंसर्न सबसे पहले देखना है, तो आपको अपना लाइसेंस रेंट पे नहीं देना है। बिकॉज क्योंकि एक इंटर्नशिप का अगर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टैंडिंग फार्मेसी कर सकते हो। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो करंटली रजिस्टर्ड है एंड ही इज़ डूइंग जॉब इन अ हॉस्पिटल और एनी ऑफ टीचिंग in, or whether he is working in a hospital, so he as being a clinical pharmacist and a drug expert, he can run a drug information center out there, so he can easily provide a knowledge regarding the drug information and poison information about the medication storage and the drug interaction, drug food reaction, adverse drug reaction. So एक और चीज़ है कि बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डॉक्टर्स आर नॉट सपोर्टिंग। तो ये है कि जैसे हम एक साल इंटर्नशिप में कहीं पे भी हम जाते हैं, तो इफ़ यू हैव अ गुड साउंड ऑफ नॉलेज एंड यू हैव अ वैलिड प्रूफ दैट दिस मेडिकेशन इज़ नॉट गुड फॉर द पेशेंट, एंड यू नो कि आगे जाके जो पेशेंट है उसको इससे ड्रग रिएक्शन और ड्रग इंट्रैक्शन होगी, तो यू हैव राइट टू रिफ्यूज़ कि आप वहाँ पे बोल सकते हो, आप मेडिकेशन को ट्रीटमेंट चार्ट से हटवा सकते हो। यू हैव राइट टू डू दिस। अगर आपका वो वैलिड हुआ तो दे डेफिनेटली विल सपोर्ट यू इन दैट। एंड एज आई टोल्ड यू कि फिजिशियन को ये नहीं पता अभी आधे से ज़्यादा को कि जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी पॉइजन इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द और ड्रग इंट्रैक्शंस जो होती हैं, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उन्हें मतलब ये नॉलेज प्रोवाइड करवा सकता है। और इससे क्या होगा कि एक तो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल हैं और जो फिजिशियन हैं उनकी एक तो नॉलेज बढ़ेगी रिगार्डिंग द मेडिकेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है वो पेशेंट के लिए भी हार्मफुल है और फिजिशियन के लिए तो समहाउ उसका तो इतना लॉस नहीं होगा, बट पेशेंट इज माइट बी देयर इज़ अ चांस कि ही उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होंगे। और यहाँ पे इंडिया में लोगों को नहीं पता कि उन्हें कहाँ पे रिपोर्ट करना है। वो दवाई लेके चले जाते हैं, उन्हें रैशेज होते हैं, उन्हें ड्रग में बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो नहीं रिपोर्ट कर पाते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल? तो हम फार्माकोलॉजिस्ट है जो वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। वो टूल्स डेवलप करते हैं ताकि जो हमारी मेडिकल की फैसिलिटी है वो और एनहांस हो जाए। बट हमारा प्राइमरी कंसर्न आज जो इस ऑब्जेक्टिव का है कि रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सो what they will do in hospital, they can be a drug consultant, they can be a clinical pharmacist, drug information pharmacist, quality safety officer, clinical pharmacy service provider, and the research associate. If they are going for a government sector, so they can be a drug controller officer out there, and they can work in a NHM, National Health Mission as well, and food inspector. So future of PharmD in India. सो देर जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो यू कैन गो फॉर अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो आप WHO में काम कर सकते हो और नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर सकते हो। यू कैन डू अ जॉब एज अ ड्रग कंट्रोलर। एंड अगर आप क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में जा सकते हो। आप जो रिसर्च में जाते हो तो उसमें आप फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो आप। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो तो डू नॉट सेल योर लाइसेंस टू एनीवन
who is not aware of medication, and you can do a self-standing pharmacy out there. So what is the salary? It all depends upon your knowledge and your capacity to do the work, because एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कि अश्योर करना कि पेशेंट की जो हेल्थ है और ट्रीटमेंट जो है वो सही से प्रोवाइड किया जा रहा है, और कोई भी ड्रग रिएक्शंस, ड्रग इंट्रैक्शंस एंड एडीआरस, टीडीएम, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उन्हें अच्छे से असेस करना होता है. सो अगर किसी को फार्मडी से रिलेटेड जानना है तो फार्मडी का ये है कि इन इंडिया यहाँ पे सारा काम फिजिशियन करते हैं. सो अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो देयर माइट बी अ चांस कि पेशेंट की सेफ्टी का कंसर्न एक बढ़ जाए, क्योंकि वो पेशेंट काउंसलिंग करेंगे उनकी अच्छे से, तो दे विल प्रोवाइड नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज़, ड्रग्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज वेल. एंड वेस्टर्न कंट्री में ये काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही करते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स. एंड एक और चीज़ है कि इंडिया वेस्टर्न कंट्री में बीपीसी होती है, बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटी, जो इंश्योर करती है कि फार्मडी क्या काम करेंगे, वेदर इफ़ दे आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, इफ़ दे आर वर्किंग इन अ कम्युनिटी फार्मेसी, इफ़ दे आर वर्किंग इन एनी फार्मेसी आउट देयर. सो बट उनका रोल वो बीपीएस ही वहाँ पे जो है अश्योर करती है. बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एआईसीटी, पीसीआई और एमसीआई ही करती है. एक ने पूछा है कि क्या फार्मडी इक्वल टू एमबीबीएस? नहीं, फार्मडी एमबीबीएस के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो 5 साल का कोर्स है और फार्मडी 6 ईयर का कोर्स है. और वन थिंग इज़ कि आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी सारी फार्मेसी डिग्री है, राइट फ्रॉम डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी से लेके मास्टर ऑफ फार्मेसी, बट वी कैन यूज़ अ डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स in front of our name. So this degree differentiate us from the other pharmacy degrees. एंड ये इक्वलेंट नहीं है, क्योंकि वो मास्टर्स इन सर्जरी भी होते हैं, तो हम सर्जरी नहीं करते हैं. आवर प्राइमरी कंसर्न इज़ टू एजुकेट अ पेशेंट रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड द डिजीजेस. So this live is all about. Thank you everyone for your lovely presence here, and stay safe.